اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ سلطان شہاب الدین غوری صحیح معنوں میں ہندوستان کی اسلامی سلطنت کا بانی شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپہ سالار کی حیثیت سے وہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس میں بعض ایسی خوبیاں بھی تھیں جو سلطان محمود میں بھی نہیں تھیں، اور انہی خوبیوں کے بدولت اس نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم کر دی۔ شہاب الدین غوری بڑا مستقل مزاج، بردبار اور دور اندیش حکمران تھا، اور شکست کھا کر بھی ہمت نہ ہارنے والا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے کبھی کسی معرے میں شکست نہیں کھائی، جبکہ سلطان شہاب الدین کو 2 مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ان شکستوں سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ حملے شروع کی، جس کی بنا پر اس کی فتوحات زیادہ مستقل اور پائیدار ثابت ہوئی۔ اس نے جو علاقے فتح کیے وہاں مستقل طور پر مسلمانوں کی حکومت بھی قائم کرتا چلا گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری دھن کا بڑا پکا تھا، اور جب کوئی ارادہ کر لیتا تو اسے پورا کر کے چھوڑتا تھا، اور وہ ناکامیابیوں سے گھبراتا نہیں تھا۔ اس نے بڑے لائق اور بڑے ہونہار غلام جمع کر رکھے تھے، جو ملکی انتظام اور سپہ گیری کی خودداد قابلیت رکھتے تھے۔ ان غلاموں کو وہ بڑا عزیز رکھتا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ سلطان شہاب الدین کے لیے جانثاری پر آمدہ رہتے تھے۔ چنانچہ ان غلاموں نے کئی علاقے فتح کیے اور سلطان شہاب الدین غوری کی حکومت میں شامل کیے، اور اسے ایک مستقل سلطنت بنا دیا۔ سلطان شہاب الدین کو خدا نے کوئی فرزند عطا نہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے کسی ساتھی نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فرزند عطا فرماتا تو آپ کے بعد آپ کے تخت و تاج کا وارث ہوتا۔ یہ جملہ سن کر سلطان شہاب الدین غوری مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے غلام میرے بیٹے ہیں، یہی میرے بعد میری سلطنت کے وارث ہوں گے۔ اس نے جو کہا تھا وہی صحیح نکلا۔ اس کے غلام ہی اس کے وارث ثابت ہوئے، اور اس کے بعد اس کی سلطنت ان غلاموں ہی میں تقسیم ہوئی جن کی اس نے شہزادوں کی طرح تربیت کی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری شروع ہی سے نئے نئے علاقے فتح کرنے اور اپنے خاندان کی حکومت کو دور دور تک پھیلانے کا بڑا شوق رکھتا تھا۔ اس کام کے لیے جن جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری سلطان شہاب الدین غوری میں موجود تھی۔ وہ لشکروں کی تنظیم اور تربیت کے علاوہ لشکر کی رہنمائی کرنے اور اسے جنگ کے دوران دشمن سے لڑنے اور فتح مند رہنے کا ڈھنگ بھی جانتا تھا۔ شروع میں اس کی حکومت غزنوی کے علاقے میں تھی۔ اس کا بڑا بھائی غیاث الدین غوریوں کا سلطان تھا، جبکہ شہاب الدین غوری اپنے بھائی کے نائب کی حیثیت سے غزنی کے علاقے کا حاکم تھا۔ چھوٹے سے علاقے پر قناعت کر کے بیٹھ جانا شہاب الدین غوری کو مناسب معلوم نہ ہوا۔ اس نے شروع ہی سے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ اس نے غزنی کی فتح کے بعد ملتان پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تو ہندوستان کے اندر وہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح سلطان شہاب الدین غوری کو ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ 2 گھڑ سوار اس شاہراہ پر سفر کر رہے تھے جو بحیرہ بنو اور غزنی سے ہوتے ہوئے غور کی طرف چلی گئی تھی۔ اپنے گھوڑوں پر بیٹھے دونوں سوار تھکے ہارے لگتے تھے، جس کا مطلب تھا وہ کوئی لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ غزنی اور غور کے درمیان ایک چرواہے پر آ کر وہ رک گئے تھے۔ یہ چرواہا دریائے ارکزاب کے قریب تھا۔ انہوں نے دیکھا اس چرواہے سے مختلف سمتوں کو کئی شاہراہیں نکلتی تھی، اور وہاں وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ شاید اجنبی تھے، اس شاہراہ کا تعین نہیں کر پا رہے تھے جو ان کی منزل کی طرف جاتی تھی۔ چرواہے سے 5 شاہراہیں مختلف سمتوں کی طرف جاتی تھی۔ ایک سیدھی آگے دریائے ارکزاب کو عبور کرنے کے بعد غور، اور پھر وہاں سے دریائے ہلمند کو عبور کرتے ہوئے سبزوار اور ہرات کی طرف چلی گئی تھی۔ دوسری شاہراہ نیچے جنوب کی طرف قندھار سے ہوتے ہوئے سیستان کی طرف جاتی تھی، اور یہ شاہراہ زیادہ تر دریائے ارکزاب کے کنارے کنارے ہی
जुनूब की तरफ जा रही थी। तीसरी शाहिरा शुमाल मशरिक का रुख पर कोहे बाब की तरफ जाती थी और वहाँ से कोहे बाब के बाएं पहलू से खम खाती हुई सीधे आगे बल्ख और तिरमिज की तरफ चली गई थी। चौथी शाहिरा शुमाल मशरिक का रुख कर रही थी और वो कोहे सफ़ेद में से होते हुए जलाल आबाद का रुख करते हुए कोहे हिंद व कश की तरफ चली गई थी। पांचों शाहिराएँ वहाँ से गजनी और बनो और वापस बहरा की तरफ जा रही थी। दोनों सवार उस चरवाहे पर रुक गए। कुछ देर तक इधर उधर देखते रहे। फिर एक अपने साथी को मुखातब करके कहने लगा, अली मर्दान मेरे भाई खूब फंसे, सूरज गुरूब होने भी लगा है और हम ये तायुन नहीं कर पा रहे कि हम किस शाहिरा को इख्तियार करें कि अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। वो शख्स जब खामोश हुआ तो जिसको उसने मुखातब किया था और उसका नाम उसने अली मर्दान लिया था, वो उसे मुखातब करके कहने लगा, गाजी बेग तुम्हारा कहना दुरुस्त है। इस चरवाहे से काफ़ी शाहिराएँ निकलती है जिन्होंने हमें एक उलझन में डाल दिया है। अचानक अली मर्दान चौंक पड़ा और अपने साथी को मुखातब करते हुए कहने लगा, गाजी बेग काम हो गया। गाजी बेग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर पूछ लिया, क्या काम हो गया मेरे भाई? जवाब में अली मर्दान ने घोड़े पर बैठे ही बैठे एक सिमत इशारा किया। गाजी बेग ने जब उस तरफ देखा जिस तरफ अली मर्दान ने इशारा किया था तो उसके चेहरे पर तबस्सुम बिखर गया, इसलिए कि उस तरफ से एक चरवाहा अपने रेवड़ को हंकाता हुआ उसी चरवाहे की तरफ आ रहा था। उस चरवाहे को देखते हुए दोनों अपने घोड़ों से उतर खड़े हुए। रेवड़ को हाँकता हुआ चरवाहा करीब आया। उन दोनों को इस तरह खड़े देखकर चंद सानियों तक उन्हें बड़े गौर से देखता रहा। फिर उनके करीब आया और बड़ी लजाजत के साथ नरमी और बड़ी अपनाहियत में दोनों को मुखातब करते हुए कहने लगा, साहिबों अगर मैं गलती पर नहीं तो तुम दोनों इन सरजमीन में अजनबी लगते हो। इस चरवाहे पर शायद तुम दोनों इसलिए रुक गए हो, ये तायुन नहीं कर पा रहे कि कौन सी शाहिरा तुम्हारी मंजिल की तरफ जा रही है। चरवाहा जब खामोश हुआ तब अली मर्दान उसे मुखातब करके कहने लगा, अजीज़ भाई तेरा अंदाज़ा दुरुस्त है, हम अजनबी हैं, पहली बार इन इलाकों की तरफ आए हैं, इसलिए इस चरवाहे पर खड़े होकर ये तायुन नहीं कर पा रहे कि हम किधर का रुख करना चाहिए। इस पर चरवाहा मुस्कुराया, कहने लगा, कहाँ जाना चाहते हो? अली मर्दान ने गौर से उसकी तरफ देखा, कहने लगा, हमारी मंजिल का कोई तायुन नहीं, हम गोरियों के बादशाह गयासुद्दीन के भाई शहाबुद्दीन की खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। इसके सामने एक शिकायत, एक नालिश पेश करना चाहते हैं। यूं जानो जहां शहाबुद्दीन मिल जाए वही हमारी मंजिल है। अली मर्दान के इन अल्फाज पर चरवाहे के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार होता है। चरवाहा उम्र के लिहाज से 40 के लगभग होगा। थोड़ी देर तक दोनों को बड़े गौर से देखता रहा, फिर इंतहाई हमदर्दी और मोहब्बत में कहने लगा, अजीज़ भाइयों, हम कोहिस्तानी लोग साहिब सरवत तो नहीं होते, लेकिन हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबी और सरमाया मेहमान नवाजी होती है। अगर तुम दोनों लंबा सफ़र करके आए हो और शहाबुद्दीन गौरी से मिलना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें पेशकश करता हूँ कि शब बिसरी मेरे यहाँ करो, सुबह सवेरे अपनी मंजिल की तरफ निकल जाना, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा। यहाँ तक कहने के बाद रुका, फिर वो दोबारा उन दोनों को बड़ी हमदर्दी में मुखातब करते हुए कह रहा था, जहाँ तक शहाबुद्दीन गौरी का ताल्लुक़ है तो वो तकीन आबाद में क़याम रखता है और इन दिनों वही क़याम किए हुए है। तकीन आबाद यहाँ से काफ़ी दूर है, देखो मगरिब की तरफ सूरज गुरूब होने वाला है। तुम दोनों अजनबी हो, इन शाहिराओं और रास्तों से वाकिफ़ नहीं हो, मेरे साथ चलो, ये बाएं जानिब करीब ही मेरी बस्ती है, बिल्कुल दरिया के किनारे, वहाँ क़याम करो, खुद भी सुस्ता लोगे, तुम दोनों के घोड़े भी थके हारे हैं। रात बसर करने के बाद तुम और तुम्हारे दोनों घोड़े ताज़ा दम हो जाएंगे। साथ ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम किस सिम से सफ़र करते हुए तकीन आबाद पहुँच सकते हो। चरवाहा जब खामोश हुआ तब इस बार उसे गाजी बेग मुखातब करके कहने लगा, भाई जो पेशकश तुम कर रहे हो ये है तो बड़ी पुरकशिश। मेरे अजीज़ भाई, पहले ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? चरवाहा फिर धीरे धीरे मुस्कुराया, कहने लगा, नामों में क्या रखा है,
तुम मुझे चरवाहा ही कहकर मुखातब कर सकते हो। वैसे मेरा नाम फ़ज़ाइल ख़ान है। भाई तकल्लुफ़ ना करना, मेरे साथ चलो, तुम्हें आराम और क़ियाम की ज़रूरत है। जो रूखा सूखा मैं अपने घर में खाऊंगा तुम्हें भी पेश करूंगा, और मुझे इस बात पर फ़ख्र होगा कि मैंने लंबी मसाफत वाले 2 मुसाफिरों को अपने यहाँ ठहरा कर उनकी मेज़बानी का शर्फ हासिल किया। इनकार ना करना, तुम दोनों की खिदमत करके जो सवाब मुझे मिलेगा मैं जानूंगा कि वो मेरे आमाल में एक सदका जारिया होगा। चरवाहे फ़ज़ाइल ख़ान के इन अल्फाज पर अली मर्दान और गाज़ी बेग दोनों हंस दिए और एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अली मर्दान कहने लगा, भाई हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारी पेशकश को एक नेमत समझते हुए ठुकराएंगे नहीं। इस पर फ़ज़ाइल ख़ान खुश हो गया था। कहने लगा, अगर ऐसा है तो आओ बिस्मिल्लाह करें। उसके साथ ही अली मर्दान और गाज़ी बेग दोनों ने अपने घोड़ों की बागें पकड़ी और रेवड़ के पीछे फ़ज़ाइल ख़ान के साथ हो लिए थे। उन्होंने कुछ ज़्यादा दूर ना जाना पड़ा था कि उन्हें अपने सामने एक बस्ती के आसार दिखाई देने लगे थे। जब वो बस्ती के करीब गए तब उन्होंने देखा बस्ती से बाहर कच्ची मिट्टी का एक इहाता बना हुआ था। वहाँ आकर फ़ज़ाइल ख़ान का भेड़ बकरियों पर मुश्तमिल वो रेवड़ आप से आप रुक गया था। मिट्टी के इस इहाते के एक तरफ लकड़ी का दरवाज़ा था। फ़ज़ाइल ख़ान ने आगे बढ़कर वो दरवाज़ा खोल दिया। रेवड़ के जानवर अंदर दाखिल होना शुरू हो गए थे। इहाते के अंदर सरगंडों के छपरे बने हुए थे। रेवड़ के जानवर आप से आप उनके नीचे जाकर बैठने लगे थे। अली मर्दान और गाज़ी बेग भी फ़ज़ाइल ख़ान के साथ इहाते में दाखिल हुए। उन्होंने देखा इहाते का दायां हिस्सा तो ज़्यादातर छप्पर नुमा था जिनके नीचे रेवड़ के जानवर चले गए थे। बाएं जानिब कुछ कमरे बने हुए थे और इन कमरों से आगे छप्पर नुमा एक अस्तबल था। उसके नीचे एक घोड़ा भी बंधा हुआ था। अली मर्दान और गाज़ी बेग जब इहाते में दाखिल हो गए तब फ़ज़ाइल ख़ान ने इहाते का दरवाज़ा बंद कर दिया। पहले अली मर्दान और गाज़ी बेग को लेकर छप्पर नुमा अस्तबल की तरफ गया, फिर उन्हें मुखातब करके कहने लगा, मेरे अजीज़ों, दोनों अपने घोड़े से उतरो। ज़रूरत का सामान, बिस्तर और ज़ेन उतार दो। ये सामने जो घोड़ा बंधा है मेरा है। कभी कभार मैं कहीं जाना हो तो इससे सवारी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। लिहाजा अपने घोड़ों को इसके करीब बांध दो। अंदर वो दाएं जानिब जो बोरे रखे हुए हैं उनमें घोड़ों की खुराक है। इनमें दाना मिला भैंस है। वहाँ से भैंस निकाल कर अपने घोड़ों को डाल दो। घोड़ों के करीब ही पानी से भरी नानंद है, वहाँ से तुम दोनों के घोड़े पानी पी सकते हैं। फ़ज़ाइल ख़ान के कहने पर अली मर्दान और गाज़ी बेग तेज़ी से हरकत में आए। दोनों ने घोड़ों की ज़ेनों से बांधा हुआ अपना सामान उतार लिया और सामान को एक तरफ रख दिया। पहले घोड़ों को पानी पिलाया, फिर जो घोड़े पहले वहाँ बंधा हुआ था उसे हटकर दोनों ने अपने घोड़ों को बांध दिया और घोड़ों के आगे जो दाना मिला हुआ चारा डाल दिया था। उसके बाद फ़ज़ाइल ख़ान के कहने पर अपना सामान उठाकर वो साथ वाले कमरे के एक कोने में रखवा दिया। अली मर्दान और गाज़ी बेग ने देखा वो कमरा जिसमें वो दाखिल हुए थे खासा बड़ा था। कमरे की छत लकड़ी की तख्तों की थी और पूरा छत जो मखरूती शक्ल का था वो लकड़ी के 4 मोटे मोटे सुतूनों पर खड़ा था। कमरे की दीवारें सरगंडों की मोटी पिंत से बनी हुई थी और इन सरगंडों को अंदर बाहर से मिट्टी में पोता मिलाकर उन्हें खूबसूरत बना दिया गया था। अली मर्दान और गाज़ी बेग ने जब अपना सामान वहाँ रख दिया था तब उन दोनों को मुखातब करते हुए फ़ज़ाइल ख़ान कहने लगा, तुम दोनों गर्म इलाके के रहने वाले हो। ऐसे कमरे तुमने अपनी सरजमीन में नहीं देखे होंगे। इसकी मखरूती शक्ल इसलिए है ताकि बर्फ़बारी के दौर में जब यहाँ ज़ोरों की बर्फ़ पड़ती है तो छत पर टिकने के बजाय पिघल कर नीचे चली जाती है। फिर उसने कमरे के वसत में एक तनूर की तरफ इशारा किया और कहने लगा, ये तनूर जो तुम देख रहे हो बर्फ़बारी के दौर में इसमें लकड़ियाँ डाल कर इसे गर्म कर दिया जाता है। लकड़ियाँ जब जल जाती है तो इसके ऊपर से ढाँप दिया जाता है
और इस तरह पूरी रात एक कमरा गर्म रहता है। फिर अली मर्दान और गाजी बेग को देखते हुए फ़ज़ाइल खान दूसरे कमरे की तरफ गया। कुछ बिस्तर वो उठा लाया। पहले कच्ची मिट्टी की बनी फर्श पर उसने चटाइयाँ डाली। इन पर उसने 3 बिस्तर लगा दिए थे। फिर उन्हें मुखातब करके वो कहने लगा, ये मेरा बाड़ा है, मुस्तकिल रिहाइश नहीं, इससे मुत्तसिल ही मेरी रिहाइश गाह है। मेरी बीवी और बच्चे अपने नानिहाल गए हुए हैं, इसलिए इन दोनों मैं अकेला ही बीवी बच्चे यहाँ हो, इसलिए इन दिनों मैं अकेला हूँ। बीवी बच्चे यहाँ हो तब भी मैं रात अपने इस बाड़े में ही बसर करता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद फ़ज़ाइल खान रुका। फिर उस कमरे के अंदर दीवार में जो दरवाज़ा था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ये तहारत खाना है, हर वक्त यहाँ वाफिर मिक़दार में पानी मिलेगा। मैंने बिस्तर लगा दिए हैं, तुम दोनों भाई बैठो, मैं थोड़ी देर तक हाजिर होता हूँ। अली मर्दान और फ़ज़ाइल खान की इस गुफ्तगू के जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि फ़ज़ाइल खान मुड़ा और वहाँ से निकल गया था। अली मर्दान और गाजी बेग काफ़ी देर तक वहाँ बैठकर बातें करते रहे। तहारत खाने में वज़ू करने के बाद मगरिब की नमाज भी उन्होंने वहाँ अदा की। इसके बाद फ़ज़ाइल खान लौटा। वो खाने के बर्तन उठाए हुए था। कमरे में दाखिल होते ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे अफसोस है कि लौटने में मुझे देर हो गई। एक तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने में मस्जिद चला गया था, दूसरे खाना तैयार करवाने में मुझे कुछ देर लग गई। इसके साथ ही खाने के बर्तन उसने उन दोनों के सामने लगाना शुरू कर दिए थे। जब वो बर्तन रख चुका तब बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए अली मर्दान ने पूछ लिया, हमारे मेहरबान मेज़बान, आपकी बीवी बच्चे तो यहाँ नहीं है, खाना आप कहाँ से ले आए हैं? जवाब में फ़ज़ाइल खान मुस्कुराया, कहने लगा, इस बस्ती के सारे लोग भाई बहनों की तरह रहते हैं और फिर ये बस्ती के रिहाइश ज़्यादातर मेरे कबीले वाले हैं। जिसको भी इशारा करूं खाना तैयार करके दे देता है। देखो आओ पहले मिलकर खाना खाएं, इसके बाद बातें होंगी। तीनों ने पहले खाना खाया, उसके बाद फ़ज़ाइल खान ने बर्तन समेटकर एक तरफ रख दिए। वही तीनों ने मिलकर इशा की नमाज अदा की, फिर बिस्तरों में बैठ गए। उसके बाद फ़ज़ाइल खान उन दोनों को मुखातब करके कहने लगा, मेरे दोनों अजीज़ भाइयों, हम खाने और नमाज से फारिग हो चुके हैं। अब मैं तुम दोनों से तफसील के साथ जानना चाहूँगा कि तुम शहाबुद्दीन गौरी के पास क्या नालिश लेकर जा रहे हो। क्या तुम्हें किसी से अजियत पहुँची है? अगर ऐसा मामला है तो ये नालिश, ये शिकायत तुमने मुल्तान के मकामी हकीम से क्यों नहीं की? क्या वहाँ का हकीम मुनसिफ मिजाज नहीं कि तुम इतना लंबा सफ़र तय करके शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में हाजिर होना चाहते हो? फ़ज़ाइल खान जब रुका तब गाजी बेग बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, मोहतरम फ़ज़ाइल खान, बात ऐसी नहीं है। दरअसल मुल्तान पर इस वक्त करामातियों की हुकूमत है। वो मुसलमानों पर बेइंतहा मजालिम करते हैं। इसके अलावा वो मुल्तान के लोगों को तंग करने के लिए उन्होंने नहरवाला के हिंदू राजा भीमदेव के साथ ताल्लुकात इस्तिवार कर रखे हैं और मुसलमानों पर मजालिम करने के लिए अक्सर व बेशतर ये करामाती नहरवाला के राजा भीमदेव का भी तायुन हासिल करते रहते हैं। मुल्तान के करीब ही ओच नाम का एक शहर है। ये बड़ा कदीम और तारीखी शहर है। वहाँ हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में उनका एक सालाना मेला लगता है। इसमें नहरवाला का राजा भीमदेव अपने अहले खाना के साथ जाता है। वहाँ अजीब सी खिलाफ इस्लाम रसूमात होती है, जिनमें ये करामाती भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और फिर पिछले साल से वहाँ एक नए काम की इब्तिदा हुई। यहाँ तक कहने के बाद जब गाजी बेग रुका तब बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए फ़ज़ाइल खान ने पूछ लिया, मेरे अजीज़ भाई, कैसा नया काम हुआ? गाजी बेग ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मेरे अजीज़ भाई, नहरवाला का राजा भीमदेव हर साल ओच मेले के मौके पर वहाँ अपने अहले खाना के साथ आता है। पिछले साल यूँ हुआ कि अपने साथ वो अपनी राजकुमारी और राजकुमार को भी लेकर आया। राजकुमार बड़ा है, उसकी उम्र 15-16 बरस की होगी। राजकुमार छोटी है। मेरे अजीज़ भाई, नहरवाला का राजा भीमदेव हर साल ओच मेले के मौके पर वहाँ अपने अहले खाना के साथ आता है। पिछले साल यूँ हुआ कि वो अपने साथ अपनी राजकुमारी और राजकुमार को भी लेकर आया। राजकुमार बड़ा है, उसकी उम्र 15-16 बरस की होगी। राजकुमारी छोटी है, 12 साल के लगभग होगी।
वहाँ भीमदेव की राजकुमारी ने निशाना बाजी का बेहतरीन मुजाहरा किया। लोगों के देखते ही देखते राजकुमारी ने अपने कानों से सोने की एक छोटी सी बाली उतारी। उस बाली को उसने एक लकड़ी की बिल के साथ लटका दिया था। फिर कई गज पीछे हट गई और तीर चलाया। उसने जो तीर चलाया वो इस कदर ठीक निशाने पर बैठकर तीर की नोक आइन बाली के बीच में आकर प्युस्त हुई थी। मैंने ऐसा उम्दा बेखता निशाना आज तक नहीं देखा। यहाँ तक कहने के बाद गाजी बेग रुका। फिर अपना सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, उस राजकुमारी का नाम कुमार देवी है। कमसन होने के बावजूद ऐसा बेखता निशाना शायद ही किसी के पास हो। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी हसीन, ऐसी पुरकशिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में उस जैसी हसीन लड़की भी ना देखी होगी। अब पिछले साल जो ओच में मेला लगा और भीमदेव की राजकुमारी कुमार देवी ने अपने कानों से बाली उतारकर बाली के अंदर तीर को प्युस्त किया, उस मौके पर उसके बाप राजा भीमदेव ने ऐलान किया कि जो कोई भी मेरी बेटी यानी राजकुमारी कुमार देवी जैसा निशाना लगाएगा, अपने तीर को राजकुमारी की बाली में प्युस्त करके दिखाएगा, राजकुमारी कुमार देवी को उससे मंसूब कर दिया जाएगा। और जब कुमार देवी जवान हो जाएगी तो उससे ब्याह दिया जाएगा। यह ऐलान उसने पिछली बार मेले के दौरान किया। मेले के दौरान बहुत से नौजवानों और लड़कों ने किस्मत आजमाई की, पर कोई भी निशाना अपने हदफ का ना लगा सका। निशाना बाजी सिर्फ 16 बरस से कम उम्र के लड़कों को हिस्सा लेने की इजाज़त थी। यहाँ तक कहने के बाद गाजी बेग रुका। फिर वो दोबारा कह रहा था, हम दोनों शहाबुद्दीन गोरी का रुख इसलिए कर रहे हैं कि वो मुल्तान और गिरदो नवाह के मुसलमानों को इन करामातियों के जुल्म सितम से नजात दिलाए। हमने ये भी सुन रखा है कि शहाबुद्दीन गोरी हिंदुस्तान पर हमलावर होने का इरादा रखता है और इसके लिए वो किसी मुनासिब मौके की तलाश में है। हम चाहते हैं कि शहाबुद्दीन गोरी पहले मुल्तान पर हमलावर हो और मुल्तान के लोगों को करामातियों के मजालिम और उनके साथ राजा भीमदेव के ताल्लुकात से नजात दिलाए। यहाँ तक कहने के बाद गाजी बेग जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक सोचते हुए फजाइल खान मुस्कुराता रहा। फिर कहने लगा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम दोनों में से कोई मुझे उन करामातियों से मुताल्लिक तफसील से बताए कि मैं जानूँ ये लोग कौन है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, और फिर मुसलमानों पर ये क्यों मजालिम ढाते हैं। अगर वो मुसलमान है तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़त्म करके गैरों के साथ ताल्लुकात को क्यों इस्तिवार करते हैं और मुसलमानों पर मजालिम का बास बनते हैं। फजाइल खान के इस जवाब में इस बार अली मर्दान कहने लगा, अजीज़ भाई, मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ, सुनो।